اور یہاں آپ کو بتائیں کہ دوسرا ٹی20 میچ آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف۔ دوسرا ٹی20 میچ جاری ہے۔ آسٹریلیا نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے۔ حارث رؤف کی 4، عباس افریدی کی 3 اور سفیان مقیم کی 2 وکٹیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے اوپنر میٹ شارٹ سب سے زیادہ 32 رنز، ایرن ہارٹ 2 اور اسپنر جانسن بغیر کوئی وکٹ بنائے بغیر کوئی رنز بنائے عباس افریدی کا شکار ہوئے۔ گلین میکسویل 21 اور 14 رنز بنا کر سفیان مقیم کی گھومتی گیندوں کا شکار ہوئے، جبکہ جیک فریزر 20 اور جوس انگلش 0 پر آؤٹ ہوئے۔ ٹم ڈیوڈ 18 اور زیویئر بارلیٹڈ 5 رنز بنا کر حارث رؤف کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ آپ کو بتائیں ٹی20 سیریز جاری ہے۔ دوسرے میچ میں آسٹریلیا کا پاکستان کو 148 رنز کا ہدف۔ پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ آسٹریلوی اوپنر کا ابتدائی اوورز میں جارحانہ انداز، حارث رؤف اور عباس افریدی کا جوابی وار۔ اور دوسرے ٹی20 میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ 20 رنز پر 2 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے ہیں، لیکن یہاں بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کی۔ بھارت پاکستان نہ آنے پر مزید ہے آئی سی سی کو پیسوں کی پیشکش۔ بھارتی بورڈ نے آئی سی سی کے تاحال کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کی صورت میں میزبانی کے لیے خود کو پیش کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ بھارتی بورڈ پاک بھارت میچ نہ ہونے پر آئی سی سی براڈ کاسٹرز کو زیر تلافی ادا کرے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے تحریری طور پر آئی سی سی کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بھارت کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو لکھے گئے خط میں پاکستان نہ جانے کی بے بنیاد وجوہات بیان کی ہیں۔ آئی سی سی کو وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں 9ویں ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کے شریک نہ ہونے سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ پاک بھارت میچز نہ ہونے سے انڈین بورڈ کے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ ہے۔ اور بھارت کے دباؤ پر آئی سی سی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سکرتو، ہنزا اور کشمیر میں چیمپئنز ٹرافی کی رونمائی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں دامنے کو فیصل مسجد اور پاکستان مونومنٹ میں ٹرافی کی نمائش ہوگی۔ 17 نومبر کو ٹرافی ٹیکسلا اور خانپور جائے گی۔ 18 نومبر کو ٹرافی ٹور ایبٹ آباد میں ہوگا۔ 19 نومبر کو ٹرافی مری لے جایا جائے گا۔ 20 نومبر کو نتھیا گلی میں نمائش کی جائے گی۔ 22 سے 25 نومبر تک کراچی میں ٹرافی کا ٹور ہوگا۔ 26 سے 28 نومبر تک افغانستان میں ٹرافی ٹور ہوگا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامس سے ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین ای سی بی رچرڈ تھامسن نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے سلسلہ میں چیئرمین محسن نقوی اور پی سی بی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے ہر سطح پر فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیڈیمز کو جدید انداز میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین ای سی بی نے کہا کہ انگلینڈ کا حالیہ دورہ پاکستان انتہائی شاندار رہا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے ہماری نیک تمنائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین انگلینڈ ویلز کرکٹ بورڈ رچرڈ تھامسن نے حالیہ دورے کے دوران شاندار مہمانداری پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے لائحہ عمل فائنل کرنے کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق پی ٹی آئی پختونخوا کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کریں گے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 24 نومبر کے احتجاج کو لے کر اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں اجلاس کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں پارٹی رہنما شرکت کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کو اس احتجاج کے حوالے سے ہدایات جاری کی جائیں گی اور احتجاج کو منظم کرنے کے حوالے سے اس کی تیاریوں سے متعلق آج اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کی جانب سے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور اس احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریوں کے سلسلہ میں ایک اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پارٹی رہنما شرکت کریں گے اور لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی مقدمات تفصیلات کے لیے دائر درخواست پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کو دیے گئی حفاظتی ضمانت میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر وزیر اعلیٰ کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے 2 خطوط پیش کیے۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف مقدمات کی تفصیلات متعلقہ حکام سے طلب کی ہیں۔
डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आइंदा समात तक मुकदमात की तफसील जमा करेंगे। अहम खबर है, इससे मुतलिक आपको आगाह कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकदमात तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समात का हुक्मनामा जारी और हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। वज़ीर आला KP की मुकदमात तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समात का हुक्मनामा जारी किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तोसी कर दी है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि समात का हुक्मनामा जारी किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत में 17 दिसंबर तक तोसी की है, जबकि मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समात का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन पर जो मुकदमात दर्ज हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, इस हवाले से तफसीलात फराहम की जाएँ। और इससे मुतल्लिक आपको ये भी बताएँ कि उसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। गुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर। तहरीक इंसाफ के चंद हिमायतियों ने कौमी मफाद में काम करने की बजाय सियासी मफाद को एक मरतबा फिर फोकियत दे दी। 46 मेंबरान ने कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और ख़त लिख दिया। ख़त के बाद ख़त की वजह तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती बासर होना है या कहानी कुछ और। तहरीक इंसाफ के असल हिमायती कौन? खत दर खत ने सवालों के अंबार लगा दिए हैं। खत में ना कश्मीर का जिक्र करना, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की कोई दरख्वास्त नहीं। असर रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में क्यों? सवाल उठ गए। सवाल उठता है कि अगर बात इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर क्यों ना लिखवाया जा सका? खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का जिक्र है। इलेक्शन में धांधली की तोता कहानी और बिना सबूत मुतफरिक इल्जामात हैं। खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानी को ज़मी बोस कर दिया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर दें आपको, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड हाउस से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बरतानिया में क्या सरगर्मियां रही, इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ बरतानिया तबरेज़ ज़ोहरा मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। लेकिन उससे मुतल्लिक आपको बताएं, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी रिहाइशगाह से रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ हफ्ते कबल वो लंदन पहुंचे थे और इससे पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका गए थे पाकिस्तान से और वहां से फिर लंदन रवाना हुए और उसके बाद मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात रही, जिसके बाद अब वो वतन वापस रवाना हुए हैं। उनके साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड हाउस से रवाना हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की ATC रावलपिंडी में गुफ्तगू कहते हैं कि पहले साइफर केस में अडाला जेल में पड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू किया। अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में पड़ा हूं। बानी पीटी के साथ खड़ा हूं। 24 नवंबर को लोग निकलें, कानून हाथ में न लें, एहतजाज हमारा आईनी हक है। पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, बाइज्जत बरी हुआ। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूँगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, वकला को, यूथ को, पार्टी को, लीडर्स को, वर्कर्स को दावत की है इजहार यकजहती के लिए और अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए। मेरी दरख्वास्त है तमाम लीडर्स, तमाम कारकुनान इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलें और इजहार यकजहती करें। तो दूसरी जानिब वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाए। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। PIA की निजकारी की बोली से धचका लगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया, 5 महकमों में जारी है। पेंशन के निज़ाम पर बहुत काम किया, तमाम सिविल ब्यूरोक्रेट पेंशन में हिस्सा डालेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद बात करेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद, वज़ीर ख़जाना बोले तो क्या बोले? जी बिल्कुल, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा।
12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा करेंगे और टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। वजीर खजाना का कहना था कि नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया है, इसलिए अब NFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं है और फिस्कल पैक्ट की मंजूरी के लिए वजीर आला सिंध का खसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KPK को सबसे आगे पाया है। उन्होंने कहा कि IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा करना था। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और मकसद रहे हैं और IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहते हैं। कुछ नुकात पर आमने सामने बैठकर बातचीत जरूरी थी और वो इन मुज़ाकरात में हुई है, जबकि IMF से हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल इससे मुतल्लिक़ आगाह कर रहे थे। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। हुकूमत को कारोबारी माहौल में मुकाबले की फ़ज़ा बेहतर बनाने के लिए मुदाखलत का सिलसिला कम करना होगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर के दरमियान मिशन चीफ नथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। विफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई और निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामी के मुताबिक मुआशी उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मस्बत रही। हालिया बातचीत IMF के शिशमाही जायजे के लिए की गई। मुआशी इस्लाहात, पॉलिसीज और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़म है जो टैक्स नहीं दे रहा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। मिशन चीफ IMF ने यह भी कहा कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मयार जिंदगी बेहतर कर सकता है। और अब बात करेंगे स्मोक की। पंजाब में स्मोक की परेशान कुन सूरत हाल, कई शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर 637 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, फैसलाबाद में भी स्मोक के गहरे बादल AQI 490 पॉइंट्स, मुल्तान 352, रहीम यार खान 198 और गुजरांवाला का AQI 197 रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता बारिश के बायस कई शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। रावलपिंडी का AQI 156, पेशावर 153 और इस्लामाबाद 134 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत का नज़ूल, खुनकी में इजाफा, समोग और धुंध में कमी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, बन्नू, करक और अगजई, चारसद्दा और दीरबाला में वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। राबिता सड़कें बंद हैं। वादी लीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। जनूबी पंजाब के इलाके लिया में बारिश के साथ आलाबारी, पिपला, कुंदिया, चश्मा और गिरदनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार और स्मॉग में भी कमी हो गई। अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक अपर चित्राल के इलाके बरोकल, यारखून, शंदूर, रासपुर, मस्तोच, नसरगोल वगैरह में 2 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का यह सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। मानसेरा के इलाके चिंक्यारी के सुजुकी अड्डे में गोदाम में आग लग गई। आग की वजह से मार्केट और गोदाम में मौजूद सामान जलकर खाकसर हो गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ने बताया आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इस खबर से मुतलिक आपको आगाह कर रहे हैं, मकामी अफराद और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मानसेरा से खबर है, गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। और मुल्तान के मारूफ टिकटॉकर हकीम शहजाद की जानिब से सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज पर मबनी वीडियोस अपलोड करने का ये मामला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने गिरफ्तार मारूफ टिकटॉकर हकीम शहजाद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम हकीम शहजाद की दरख्वास्त से जमानत 10 लाख रुपए मिचलकों के एवज मंजूर की। FIA साइबर क्राइम की टीम ने शुजाबाद में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया था।
मुजफ्फराबाद में कायम कदीमी दरसगाह जामा कश्मीर हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा की जानिब से कश्मीर के कल्चर को मुतारिफ कराने के लिए स्टॉल लगाए गए। तलबा का कहना है कि कश्मीर कल्चरल दुनिया में अलग पहचान रखता है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं जामिया कश्मीर में मौजूद हमारे नुमाइंदे फवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की कदीमी दरसगाह जामिया कश्मीर के अंदर, जहाँ पर अलाइड हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा जो नुमाइशी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टॉल हैं वो भी नुमाया हैं। जिसमें सबसे जो नुमाया स्टॉल है वो गिलगित और कश्मीरी स्टॉल नज़र आ रहे हैं, जिसमें शहरियों की और तलबा की बड़ी तादाद यहाँ पर जो स्टॉल का विज़िट भी करने आती है और देखती है, चीज़ें ख़रीद के भी लेके जाती है। मेरे साथ कुछ कश्मीरी बच्चियाँ यहाँ पर स्टॉल लगाए मौजूद हैं, उनसे चलते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लड़कियां हैं वो चटनी बना रही हैं, यहाँ पे ये देखें ये लस्सी बना रही हैं, और यहाँ पे ये देखें ये हमने चूल्हा और कटवी रखी हुई है। इसमें जैसे हम लोग देसी तरीके से सब्जी बनाते हैं वो वाला तरीका है। और उसके अलावा वो देखें चरपाई पे हमारी एक ठाकुराइन हमने बिठाई हुई है। ये प्रॉपर तरीके से हम एक ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपनी ज़बान में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगी कि तुसी दिखते चलो जी अस्ती पहाड़ी ज़बान है। अस्ते आजकल के बच्चों को आंदी ही नहीं, ना उन्होंने समझ आती है, ना उन्होंने ना बोलनी आती है। और इधर दिखिया जुलाई जिस तरह दिखिया जुलाई चीज़ें हिंदको दी चीज़ें जितनी अस्ती पहाड़ी कश्मीरी दी अपनी कल्चर दी चीज़ें वो सारियां को भुल गई दी। अजमल इनका यही कहना है कि जो कश्मीरी कल्चर है वो दुनिया भर में मशहूर है, इसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मोना सलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली GIT के हेड को तलब कर लिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का कहना था कि मोनिस इलाही के रेड नोटिस और बैरून मुल्क से गिरफ्तारी से मुतालिक GIT मामले को खुद ताकुब करे और मुल्जिमान की जायदाद कुर्की के दुरानिया में तोसी पर रिपोर्ट जमा कराए।